Dear students, Assalamu alaikum. I am your instructor Asma Zahir with the sixth lecture of the course Introduction to Exceptionalities on the topic of transition into adulthood and technology for intellectual developmental disabilities. In today's lecture, we will discuss two topics about intellectual developmental disabilities. One is concerned with transition into adulthood and second is concerned with technology, useful technology for intellectual developmental disabilities. As far as the transition into adulthood concern, first it's better to look into the definition of transition. Transitions occur throughout life and are faced by all young people as they progress from childhood through puberty and adolescence to adulthood, from immaturity to maturity, and from dependence to independence. In addition, some young people experience extra transitions as a result of other life events, for example, bereavement, separation of parents, and being placed in care. ट्रांजिशन, हम सब जिंदगी में ऐसे अदवार से गुजरते हैं जब हम एक फेज से दूसरे फेज की तरफ जाते हैं, तो वो ट्रांजिशन का पीरियड कहलाता है। ठीक है।
अच्छा जी, अब हम आते हैं एरियाज ऑफ ट्रांजिशन प्लानिंग। ट्रांजिशन प्लानिंग के कुछ एरियाज हैं जिनमें ट्रांजिशन की प्रोग्रामिंग की जा सकती है या ट्रांजिशन जो है वो प्लान की जा सकती है। सॉरी, ये मैंने पीछे एक पॉइंट भूल गई हूँ, हिस्ट्री ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनको सेल्फ डिटर्मिन करने में क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है? जो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है ना, जो इनको फेस करना पड़ती है, जो कि ये बहुत अरसे से देखते आ रहे होते हैं अपनी फैमिलीज़ में, और लोग इसे इनको जैसे ट्रीट कर रहे होते हैं, तो ये लर्नड हेल्पलेसनेस सीख जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं, यानी कि वो कुछ नहीं कर सकते, और ये उनको इन्वायरमेंट लर्न करवाता है, जो कि एक बैरियर बन जाता है उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन कंस्ट्रक्ट करने में। इसलिए टीचर्स को, सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उन्हें ये लर्नड हेल्पलेसनेस की स्टेट से निकालने में, कि वो इंडिपेंडेंट होकर कुछ अपने लिए कर सकें और अपने डिसीजंस खुद मेक कर सकें। Next, areas of transition planning for intellectual developmental disabilities. There are two major and common areas of transition planning for students or children or individuals with intellectual developmental disabilities. First area is community adjustment, and second area is employment. Community adjustment. Community adjustment. People with intellectual disabilities, many of which are in the area and keep themselves well groomed and their living quarters well. में रह रहा हो, कर रही हूँ उसकी डेली एक्टिविटी वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? Overwhelming evidence shows that adults with intellectual disabilities have high rates of unemployment. Although employment statistics for workers who are intellectually disabled have been discouraging, most professionals working in this area are optimistic about the potentials for providing training programs that will lead to meaningful employment for these adults. Research indicates that with appropriate training, individuals with intellectual disabilities can hold down jobs with a good deals of success based on measures of attendance, employer satisfaction, and length of employment. School often address preparing students with intellectual disabilities for employment by providing opportunities for them to gain experiences in the world of work. Some immediately place students in work settings, while others introduce work experiences first in the school setting and gradually provide opportunities for working in real work settings. ठीक है, कि मतलब बच्चे को क्या किया जाता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को इतना इनरिच करे कि वो आफ्टर स्कूल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेकअप कर सके। ठीक, अब जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तो एम्प्लॉयमेंट जब प्रोवाइड की जाती है तो एक शेल्टर वर्कशॉप आ जाती हैं और दूसरी सपोर्टेड कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आ जाता है। शेल्टर वर्कशॉप क्या होती हैं? जहाँ पर बच्चों को कुछ वर्किंग ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है या उनकी
परमानेंट प्लेसमेंट की जाती है या फिर वो ट्रांजिशनल प्लानिंग का हिस्सा होते हैं, कि वो कुछ अरसे के लिए उस वर्कशॉप में रहते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं और दूसरे लोगों की हेल्प लेकर जो है वो लो लेवल की स्किल्स सीख जाते हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है सपोर्टेड कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर क्या किया जाता है, सपोर्टिव कम्पिटिटिव एम्प्लॉयमेंट में बच्चे को जो है सपोर्ट के साथ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाया जाता है, जहाँ पर एक कोच होता है जो कि बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग करता है, उसके वर्क एरिया सिलेक्ट करता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए उसको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करता है और उसको ट्रेनिंग देता है कि उसने अगर कोई स्पेसिफिक काम करना है तो वो करना किस तरह से है, जैसे कि लॉन्ड्री, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप। ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो जगह हैं, वहाँ पर बच्चों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं वहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है।
Dear students, now you can see the curriculum that is available at this time in the government special education centers and schools of the Punjab for children with intellectual developmental disabilities. I have picked this curriculum to show you, and you can see how our state and our country is planning, and our region is planning for intellectual developmental disabilities. जैसे कि आपका एरिया कंप्लीट हो चुका है, आपने देख लिया है, सारा पढ़ लिया है इस बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको करिकुलम भी दिखा दूं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए जो करिकुलम होता है वो किस तरह का है। ठीक है, अच्छा ये देखें ज़रा। अब ये करिकुलम जो है ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए पंजाब में तश्कील दिया गया है। ठीक है, इसके 11 एरियाज़ हैं। फर्स्ट एरिया इज़ कोग्निटिव स्किल्स, सेकंड इज़ सेल्फ हेल्प स्किल्स, थर्ड इज़ सोशल स्किल्स, फोर्थ इज़ फाइन मोटर स्किल्स। फोर और सिक्स जो एरिया है फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, ये मोटर स्किल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, फिर फंक्शनल एकेडमिक्स है, कम्युनिटी यूज़ है, लेयर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, म्यूज़िक हैं, एंड वोकेशनल स्किल्स फॉर ट्रांजिशनल पीरियड है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ इस चीज़ से भी, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखें ज़रा क्या है कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, कि कॉग्निटिव स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें कॉग्निटिव स्किल्स में कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं और परसेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि कलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, शेप कॉन्सेप्ट, के बच्चे को ये सिखाना है। अब आप यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ देखें, बच्चे को 3 बुनियादी शिकाल की पहचान करवाएं, गोल, त्रिकोण, चौकोर। ठीक है, अब हमारे लिए या नॉर्म में जो बच्चे आते हैं उनके लिए कितना इजी है, लेकिन जो डाइवर्सिटी के साथ बच्चे हैं उनके लिए एक सिंपल शेप याद करना भी, मतलब यहाँ पर तो आसानी से लिखा गया है ना, बच्चे को 3 अशकाल याद करवा दें, गोल, त्रिकोण, चौकोर। जबकि आपको गोल एक राउंड शेप याद करवाने में ही पता नहीं आपको कितने दिन लग जाएंगे, इन बच्चों को कितनी एक्टिविटीज़ आपको प्लान करनी पड़ेंगी। ठीक, तो ऐसे नहीं होता है कि आप मतलब एट वंस आप बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व करके सीख जाता है, बल्कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे होते हैं इनमें काफ़ी वैरायटी होती है, और आपको असल में इनके साथ काम करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, तभी आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव कर पाते हैं। ठीक, अच्छा देखें, जैसे सीज़न कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, टेक्सचर्स का कॉन्सेप्ट है, सेंसेस का पता है, मेजरमेंट, टाइम एंड डेट, और परसेप्चुअल स्किल्स जैसे देखें जिसमें मैचिंग है, सॉर्टिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीक्वेंस है, पार्ट होल रिलेशनशिप है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाता है, सेल्फ हेल्प एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। सेल्फ हेल्प में फीडिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग आ जाता है, और देख सकते हैं जैसे आप, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ये ड्राइव में शेयर भी कर दूंगी। ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट है, उसके बाद ये पोएम्स वगैरह हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एंड लेयर टाइम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे देखें कि स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स और स्टोरी टेलिंग विद एक्शन और बुक रीडिंग। ठीक है, कि टीचर्स क्या क्या कुछ कर सकते हैं या क्या क्या कुछ कर रहे हैं, पंजाब लेवल पे ये करिकुलम यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें टॉयलेटिंग, मुझे लगता है इसके पेजेस जो है ना वो आगे पीछे हुए हैं। ये म्यूज़िक की एक्टिविटीज़, इसके पेजेस जो है ना वो आगे पीछे में, पीडीएफ फाइल है, स्कैन हुई हुई है। फाइन मोटर स्किल्स देखें, ठीक है, लिखते हुए बच्चे को सही तरीके से पेंसिल पकड़ना सिखाएं, सफ़े पर उल्टी सीधी लाइनें खींचना सिखाएं जिसे हम स्क्रिबलिंग कहते हैं, लाइनों को मज़ीद कंट्रोल करके खींचना सिखाएं, नकल करके दायरा बनाना सिखाएं, कागज़ को तह लगाना सिखाएं। ये सारी वो मोमेंट्स हैं जो डिक्सटेरिटी मोमेंट्स कहलाती हैं, जो कि फिंगर्स को यूज़ करते हुए होती हैं। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद ग्रोस मोटर स्किल्स हैं, जैसे वॉकिंग, स्टैंडिंग, जंपिंग, किकिंग, थ्रोइंग, ठीक, हॉपिंग, स्किपिंग, ड्रिबलिंग। फंक्शनल एकेडमिक्स हम बात कर चुके हैं पहले भी, आपने सेंसेस याद करवानी है, लिखना कैसे है, मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन है। इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ये देखें, ये हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन या रेस्क्यू या डाक खाना, इसकी क्या अहमियत है।
अगर बच्चा जो है माइल्ड कैटेगरी के साथ है तो उसे ये चीज़ें भी साथ साथ सिखाएं। ठीक है, ये प्रोफाउंड कैटेगरी में देखें स्पीच का हिस्सा भी आ जाता है, लैंग्वेज का हिस्सा भी आ जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती है। खेल है, प्ले टाइम एक्टिविटीज़ है, मॉडरेट कैटेगरी के लिए भी स्पीच दी हुई है, माइल्ड कैटेगरी के लिए अलग से है, कम्युनिटी यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलें जी, ये था करिकुलम। मैंने कहा आपको ज़रा दिखा दूं ताकि आपको ज़रा नो हाउ हो जाए कि पंजाब में गवर्नमेंट लेवल पे हम किस तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं उनको डील कर रहे हैं। सो ये था हमारा एरिया जो कि हमने अपने इंट्रोडक्शन टू एक्सेप्शनलिटीज़ के कोर्स में ये एरिया को पढ़ा है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के एरिया को। अब हम नेक्स्ट अपना एरिया जो है नेक्स्ट लेक्चर में वो शुरू करेंगे। देखते हैं कौन सा एरिया आ रहा है। ये था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ के साथ सारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने एजुकेशनल कंसिडरेशंस भी देखी हैं, क्लासिफिकेशन भी देखी हैं, कॉजेज़ भी देखे हैं, डेफिनेशंस भी देखी हैं, टेक्नोलॉजी भी देखी है, ट्रांजिशनल पीरियड भी देखा है और एंड पे करिकुलम भी देख लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह।